آپ سب کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام ہو اور خدا کے کلام کی سلامتی آپ پر اور آپ کی زندگی پر ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج خدا کے زندہ کلام سے میں نے یوٹیوب پہ گڈ نیوز چینل اسے لائک ضرور کیجیے اور خدا آپ کو بڑی برکت دے گا۔ جیسے کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے ہم خدا کے خادم اپنے گھروں میں اور پرے کر رہے ہیں، آن لائن آپ کو میسج دے رہے ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ آپ کا بٹن بہت ساری آنے والی میری نیکسٹ ویڈیو آپ کے زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم گھروں میں ہیں اس کورونا کی وجہ سے، تو کیوں نہ ہم بھی اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ خدا نے ہمیں موقع دیا، خدا نے ہمیں سوچ دی کہ میں کر سکتا ہوں، میں آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ دعا کیجیے، اپنی فیملی کو لیجیے، اپنے بچوں کو لیجیے، اپنے بزرگوں کو لیجیے، اپنے گھر میں دعا کریں۔ جتنے مسیح لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اگر یہ وبا اگر دور ہو سکتی ہے، آپ کی دعاؤں سے ہو سکتی ہے، میری دعاؤں سے ہو سکتی ہے، اور جس کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ تو آواز دیتا ہے تو طوفانوں کے رخ بدلی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ آواز دیتا ہے تو قبریں کھل جاتی ہیں، جب وہ آواز دیتا ہے تو لنگڑے چلتے ہیں، جب وہ آواز دیتا ہے تو 4 دن کا مردہ لازر بھی قبر سے باہر آتا ہے۔ وہ آپ کو آواز دے رہا ہے کہ دن برے ہیں، یہ دن برے ہیں، مصیبت پہ ہے، پریشانی میں ہے، ہر طرف ڈر اور خوف میں لوگ مبتلا ہیں، اور جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ہم ڈرتے۔ خدا یسوع مسیح کہتا ہے حالی میں ڈر خوف کے مارے ہوئے اپنی زندگی کے ساتھ۔ آج آپ خدا کے کلام اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور جب آپ دیکھیں کہ نوح نے کیا کیا، اپنی جو کشتی بنائی تھی اس کو بند کر لیا اور اپنے خاندان کو لے کر بیٹھ گیا۔ کیا وہ ڈوب گیا؟ کیا وہ ہلاک ہو گیا؟ نہیں، اس نے خدا کی بات کو سنا، اس نے اپنی بچوں کو لیا، بہووں کو لیا، نہ کہ اس نے اپنے لیے بلکہ جتنے بھی جاندار تھے خدا نے ان کو بھی کہا کہ ان کو بھی لے لو۔ اور خدا نے جب اسے کہا کہ کشتی تیار ہو، اور وہ ایک سمجھے کہ خدا کا پلاننگ ہمیشہ انسان کے لیے بھلائی کا ہوتا ہے۔ آج خدا نے ہمیں دیا، ہم اپنے گھروں میں بند ہیں، ہم پریشان نہ ہوں، کیوں نہ یہ موقع ہے، جتنی جدائی تھی اب قریب آنے کا موقع ہے۔ کس کے؟ خدا کے کلام کے، اس کے قریب آ جائے۔ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ ہم کیا کھائیں گے؟ دعا کرنی ہے۔ جیسے کہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ دعا، آپ کی کتنے ٹائم دعا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری 3 ٹائم دعا ہے، صبح، دوپہر اور شام کو۔ ہم 3 ٹائم دعا کرتے ہیں۔ دانیال کتنے ٹائم دعا کرتا تھا؟ 3 ٹائم دعا کرتا تھا۔ اور سلیپیں کتنی؟ 3۔ اور جب یسوع نے چلا کر جان دی تو کتنی چیزوں کے نقصان ہوئے؟ 3 چیزوں کے، قبریں، پہاڑ اور پردہ۔ اور جب یسوع نے جان دی تو کون سا پیر تھا؟ تیسرے پیر کے قریب۔ اور پترس کہتا میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں گا، ایک تیرے لیے، ایک ایلیے کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے۔ اور جب یسوع
तीसरी बार उनके पास आया तो उन्हें सोते पाया और कहा उठो और जागो और दुआ करो। यूहन्ना मछली के पेट में 3 दिन, मेरे यीशु कब्र के अंदर 3 दिन और तीसरे दिन जी उठा। अगर आप अपने घर में हैं तो आप भी दुआ कीजिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं दुआ के लिए और दुआ का असर क्या है। जब आप दुआ करेंगे तो दुआ में आपके पास कुव्वत। हम मसीह लोग अगर दुनिया में इस कोरोना को खत्म कर सकते हैं तो दुआ के वसीला से। ये बीमारी, मौत का इलाज भी यीशु के पास है, तो ये बीमारी का इलाज भी, अगर ये मुसीबत और परेशानी, ये कोरोना जैसी बीमारी अगर टल सकती है तो यीशु मसीह के नाम से। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मसीहियों के लिए खुदा इस बीमारी से महफूज करे, मसीह लोग बाजे नहीं। हम जो मसीह लोग हैं, हम जब भी दुआ करते हैं हम अपने लिए नहीं दुआ करते, क्योंकि मेरा यीशु हमारे लिए नहीं बल्कि यीशु तमाम बनी इंसान के लिए इस रुए जमीन पर रहमत और शिफा और तबीब और तबीब आजम बन के आया। वो डॉक्टर का डॉक्टर, तबीबों का तबीब है। हिकमत उसी में, शिफा उसी में। दुनिया नफरत करती थी जिनसे, खुदा यीशु मसीह ने उन्हें गले से लगाया, चाहे वो कोविड के हो चाहे कोरोना के हो। अगर ये जिंदगी अगर बच सकती है तो यीशु मसीह पर ईमान लाने से और दुआ से। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज खुदा के जिंदा कलाम से अमाल और उसका बाब नंबर 3 और आयत नंबर 1 से लेकर 4 और 5 आयत। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी के तीसरे पहर के करीब, यानी के तीसरे पहर के करीब कहां जा रहे थे? हैकल। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि आप अपने घर में जाएं और दरवाजा बंद करके अपनी कोठरी में खुदा के आगे दुआ करें, जो आपको पोशीदगी में देख रहा है, जो आपको बीमारी में देख रहा है, जो आपको गुर्बत में देख रहा है, जो आपके बच्चों को देख रहा है, जो आपके फ्यूचर के बारे में परेशान है। उसने कहा जा अपनी कोठरी में जाकर पोशीदगी में किससे दुआ कर? अपने खुदा से, ताकि ये मुसीबतें परेशानियां आपसे टल सके। आप अपने घरों में हैं तो घुटने टेके। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपको हैकल में जाने की जरूरत नहीं है। आज ये हैकल है खुदा की। आपकी हैकल, आपके अंदर खुदा का कलाम होगा। आप चलते फिरते चर्च हो जाए, आप चलती फिरती खुदा यीशु मसीह की हैकल बन जाए। और मैं आपको बताता हूं तीसरे पहर के करीब वो हैकल में जा रहे थे तो लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। क्या? जब वो दुआ के लिए जा रहे थे तो लोग एक जन्म के लंगड़े को, जो चल नहीं सकता था, वो मां के पेट से लंगड़ा पैदा हुआ और लोग उसे उठाकर लेकर आ रहे थे। क्यों लेकर आ रहे थे? ताकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और उनकी सोच ये थी, जब वो ला रहे थे उनकी सोच ये थी कि हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठकर लोगों से क्या मांगे? भीख मांगे। ना जाने कब से, क्योंकि खुदा के कलाम में यह नहीं लिखा कि वो 40 साल से मांग रहा है। ना जाने वो कितने साल का है। खुदा के कलाम में जब लिखा है कि वो कम से कम नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक जो खुदा में बताता है वो 40 साल के करीब का था। और वो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर उससे बैठाते थे और वो दुआ के लिए जा रहे थे। जब आप अपने कमरे में दुआ के रादा से निकले और कहें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कहें कि आओ आज हम भी दुआ के लिए निकलें। जब आप दुआ के लिए निकलेंगे तो फिर देखना खुदा आपके रादे, आपकी दुआ के वसीला से कितने मौजे करेगा, आपके घर को बचाएगा, आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। यही तो गुड न्यूज है। यही तो मैं कह रहा हूं कि मैंने चैनल यूट्यूब पे गुड न्यूज इसीलिए रखा कि आपके लिए अच्छी खबर,
वो अच्छी खबर कि आज देखिए क्या है, वो अच्छी खबर आज जन्म के लंगड़े के लिए, आज ये खबर आपके बच्चों के लिए, ये खबर आपके लिए जो आप मुझे देख रहे हैं बीमारी में, जो पथरी में है, जो रसौली में है, जो कमर की दर्द में है, जो शुगर में है, जो जुकाम में है, जो टीबी में है, और जो भूखे और प्यासे मुझे देख रहे हैं। ये कलाम आपके लिए है। हालेलुया। आज खुदा के कलाम में जब वो उसे ला रहे थे और जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, और वो हर रोज हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा देते थे ताकि आने जाने वालों से भीख मांगे। क्या मांगे? भीख मांगे। आप परेशान ना हो। आप किसके लिए भीख मांगते हैं? अपने पेट के लिए? आप यीशु से मांगिए, आसमान के दरीचे खोल देगा। परेशान ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यूहन्ना और पतरस दुआ के लिए जा रहे थे तो उससे उस दरवाजे पर बैठा देते थे जो खुदा के घर का दरवाजा था, हैकल का दरवाजा था, खूबसूरत कहलाता है, और उसके बाहर बैठा देते थे ताकि आने जाने वालों से भीख मांगे। जब यूहन्ना और पतरस उसके पास आए, और वो क्या करने जा रहे थे? दुआ के लिए। उनके ज़हन में ये नहीं था कि आज हम एक मां के पेट से जो एक जन्म का अंधा, जन्म का लंगड़ा है, हम उससे शिफा देंगे, वो चल नहीं सकता। लेकिन उनका इरादा क्या था? हम दुआ के लिए। तो क्या हुआ? उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। अगर आप अपना हाथ खुदा के कलाम की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, खुद कलाम खुदा है। अजीजों, जब उसने हाथ बढ़ाया, किस जरिए से, किस सोच से कि मुझे पैसे मिले, और यूहन्ना और पतरस ने उसकी तरफ देखा और उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। जब तक आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपकी जिंदगी में खुशहाली नहीं आ सकती। आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, आपको हाथ उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बचाने के लिए अगर है तो मेरा यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है। और उन्होंने क्या किया? हाथ बढ़ाया, और आगे से जवाब क्या मिला? देख, हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, आज जो कुछ है हम तुझे देते हैं। और वो बड़ा खुश हुआ कि मुझे ना जाने सोने से ज्यादा चीज बड़ी मिलेगी, चांदी से बड़ी चीज को मुझे मिलने वाली है। जब उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, आज जो कुछ है हम तुझे दे देंगे, उसने कहा मुझे कोई बहुत बड़ी चीज देंगे। वो चीज कौन सी थी? वो बड़ा खुश हुआ कि आज इनके पास सोना चांदी नहीं, और उसने कहा कि जो कुछ है हमारे पास। उनके पास ईमान था, उनके पास यीशु था। आज उन्होंने यीशु से दे दिया, क्योंकि यीशु शिफा देता है, यीशु बरकत देता है। अजीजों, मुझे जितने लोग देख रहे हैं, आप भी अपना हाथ, जब तक आप अपना हाथ, अपनी ज़बान, अपने बच्चों को कह के हाथ बढ़ाओ, क्योंकि वो आपको छूना चाहता है। और उसने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, आज जो कुछ है तुम्हें दे देते हैं। वो बड़ा खुश होया होगा कि आज मुझे बहुत माल मिलने वाला है, आज सोना चांदी से भी बढ़कर मुझे मिलने वाला है। और उन्होंने क्या कहा कि देख,
اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، آج جو کچھ ہے ہم تجھے دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور کھڑا ہو جا۔ اور اس کے گھٹنے مضبوط ہو گئے اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اچھلنے اور کودنے لگا، اور کہاں گیا؟ خدا کے گھر میں گیا۔ پہلے کبھی اسے خدا کے گھر میں کوئی نہیں لے کر گیا۔ اور کتنے تھے؟ 2۔ جب وہ اس کے گھٹنے مضبوط ہو گئے تو خدا کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 3 ہو گئے۔ اور لوگوں نے جب دیکھا پریشان ہو گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پریشان نہ ہو۔ کس لیے پریشان ہوتے ہیں؟ کس لیے مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کا ہاتھ یہ بٹن پر، یہ لال بٹن پر کلک کرنا ہے۔ یہ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے گڈ نیوز، آپ کا ہاتھ اس بٹن پر کلک کرنا ہے، اور خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا نے کہا کہ تو ہاتھ بڑھا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس چینل کو لائک کیجئے تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس تمام مسیح کلیسیا، خدا آپ کو برکت دے۔